ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਨਿਰੁੱਧ ਦੱਤ ਤੇ ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पहाड़ों नाल मत्था लावांगे। और एक एवरेस्ट बेस कैंप। ओके। तो मेरी डेट के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से ये सेट बैठा मेरे। सपोज टू बी द मोस्ट डेंजरस फ्लाइट इन द वर्ल्ड। और जैसे प्लेन्स लैंड हुए टू गेट अस टू लुक, एवरीबडी वाज चीयरिंग एंड दैट डे एकदम क्लियर वेदर था। आई गॉट माय फर्स्ट व्यू ऑफ द एवरेस्ट एंड लोत्से एंड इट वाज अमेजिंग फीलिंग। आई वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड आई कुडंट ब्रीथ। I couldn't breathe and I was like अब ये क्या सिस्टम है। When you're close to this 4,500 to 5,000 meters, that is roughly 50% of the oxygen level जो आपको जहाँ पे जो नॉर्मल सी लेवल पे आपको मिलता है। तो you can already imagine आप थोड़ी बहुत करवटें भी बदलते हो तो सांस चढ़ जाती है। गोरखशी पहुँचते पहुँचते काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद मेरे जो गाइड ने मुझे बताया कि मैं झूलते झूलते एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच जाऊं। को तो लगता है आपकी वीडियो सुन के ना जो देख रहे हैं काफियों के मन बदल जाएंगे कि जाना है हमें भी। सब तो पहला तो जी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। अज आपां किसी पर्वत ते नहीं, किसी पहाड़ ते नहीं, पर आपां गल अज पहाड़ां दी करांगे। पहाड़ां दी गल ये करांगे आपां कि भी अपने नाल ने अज अंमृतसर दा मुंडा अनिरुद्ध दत्त ते ये हांगकांग दे पहाड़ां तो शुरू करके माउंट एवरेस्ट दे बेस कैंप तक जाके आए ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਦਾ सफ़र इन्होंने हुणे उत्थे करके आए ने। आ जाओ इन्हों पुछदे हां इन्हां दे सफ़र बारे। अनिरुद्ध जी की हाल चाल ने? सत श्री अकाल जी, वेलकम। तुसीं अज थोड़ियां गल्लां साडे नाल सांझियां करो, तुहाडा एक्सपीरियंस जो रहा। हाँ जी। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी ऑल आर मिक्स फाइन। यस, मुंडा हांगकांग दा जम्मिया पढ़िया लिखिया तां करके मिक्स मसाला ज़्यादा चलदा इत्थे। ते तुसीं हांगकांग दे विच कदों तो शुरू की हाइक का? किदां मन बनया सी कि इंस्पिरेशन कित्थों मिली सी? I think about like 3 maybe 4 years ago, about 4 years back. थोड़ा बस सेहत का ध्यान रखने के लिए I think like after you cross 30 you just wanna like do a bit more exercise. तो थोड़ा बहुत ऐसे like small hike शुरू की थी like about 5 to 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर max आसपास कहीं हो आए थोड़ा बहुत। और शुरू से आदत रही थी अकेले एंजॉय करता था है कि नहीं, ज़्यादा लोगों के साथ नहीं गए, नहीं तो लोग विचे रस्ते दे like oh take pictures, do this do that. So I always enjoyed like I want to go on my own. So did this. Then I got in touch with a few Israeli friends. Acha, okay. With whom I did actually serious hiking, 15 to 20 kilometers. In Hong Kong or? In Hong Kong. In Hong Kong, okay. So like part of the Lantau Trail, part of the MacLehose Trail. So the first time I spoke to them, I told them कि I also go hiking. Okay. So when I went with them and I did like I think one whole day and I came home, I was like vaj gaye, like this was really tough. But I think that's when I understood what serious hiking and like what serious trekking is all about, like going out in the wild. They moved on to they're not here anymore in Hong Kong.
but I continued. मैं कल्ले like when we moved to Gold Coast, so I started इधर पीछे Mackley Host 10, 9, 10. I would do parts of that. I would do parts of the Lantau Trail. Do it on my own. I would 30 kilometers, 35 kilometers दिन में. तो वो कर के and it would be a good stress buster, different like thing from work as well. अपनी e-book लगाई, कोई गाने सुने करते करते निकल गए, पता नहीं चला 2-3 घंटे कहाँ गए पता नहीं. ठीक है. So that was how it all started. Starting ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ? एक बारी आई थिंक फ्यू इयर्स बैक ओनली मी एंड माई वाइफ हम लोग स्विट्ज़रलैंड में कहीं इंटरलाकन में कहीं घूम रहे थे तो वहाँ पे मेरे को एक मलेशिया से बंदा मिला जिसने बोला कि ही डिड द टूर द मॉन्ट ब्लॉन्क लूप विच इज़ ऑल्सो 100 miles about 12 to 13 days trek around France, Italy and Spain, France, Italy and Switzerland. तो मेरा इनिशियल प्लान वो करने का था, वो करने का था. But क्या हुआ, circumstances, work and so many things came in place. I missed that deadline and I knew कि कोविड के बाद जाना ही जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना ही है. तो मैंने 3 जगह फाइनलाइज की थी. एक थी टूर द मॉन्ट ब्लॉन्क, एक माउंट किलिमंजारो which is also about Kilimanjaro is also 5 to 6 days और slightly longer, और एक एवरेस्ट बेस कैंप. तो मेरी डेट के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से ये सेट बैठा मेरे लिए. सेट बैठा. तो फिर मैंने आई थिंक जून में अभी फ्यू मंथ्स बैक ही डिसाइड किया. तो घर आके मैंने मदर और फादर को बताया तो मम्मी के होश उड़ गए कि वो एवरेस्ट जाना है. मैंने कहा एवरेस्ट ऊपर समिट पे नहीं जाना, बेस कैंप पे जाना है. सो बस या वहाँ से शुरू किया और फिर whatever training and all that stuff. ਅੱਛਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਸਨੋ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ? थोड़ा बहुत videos देखी from people who've been there. Okay. And the only thing they suggested is you should be in a good level of fitness. High altitude पे mountain sickness किसी को भी हो सकती है. Doesn't matter what level of fitness you are at. तो बस I did hiking. जाने से पहले 1-2 महीना पहले हांगकांग में बहुत बारिशें पड़ी, तो what I would do, I'd go to the gym and I'd run on an incline. Okay. So that would challenge the lungs a little bit. ज़्यादा सांस चढ़ती थी. So I tried to prolong. 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, 5 मिनट किया और लंबा कर. तो I think वो काफ़ी काम आया मेरे को. वो काम आया ज़्यादा है. ते अगे फिर then how you this one manage the whole thing? So with the guide or you go your own or how was it? So what food you were eating there? Please share the whole experience. Your this one. So I got in touch with a company in Nepal. Okay. Above the Himalaya. Very good company, very good service. I only told them one thing कि मैं कल्ले करना है. You know, like I want to do the tour by myself. And मेरे 8 या 9 दिन है. नॉर्मली ये पूरा टूर होता है 12 से 13 दिन का विद एटलीस्ट 2 days ऑफ एक्लेमेटाइजेशन. आई वाज लाइक दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव. मेरे को आई डोंट हैव टू मच टाइम, सो आई कैन मे बी डू 1 day ऑफ एक्लेमेटाइजेशन और लेस. So they suggested 1 is at least necessary. So they set me up with a guide cum porter. So he was the one who was there with me throughout the whole trek. So this company, they booked everything for me. I got my own equipment, got everything done. Few things, small things like duffel bags and all of that stuff they provided. So all of that got done, no hassle. I went there. I landed in Kathmandu. So what happens is to go to the start of the trek, there is no road that goes over there. You have to take a plane. And it is a very dingy sa chota sa plane. And if people see the videos of it online, it's supposed to be the most dangerous flight in the world. Because it is a few hundred meters of between the mountains. It goes between the mountain and the runway is on a cliff.
So there have been fatal accidents as well over there. So Oh. that was also very interesting part of it. The next thing is weather plays a big role. So the first day I was supposed to fly out on the 27th from Kathmandu to Lukla, which is the starting point of the trek. अच्छा हम लोग बैठे प्लेन में, आई थिंक छोटा सा प्लेन था, होंगे अबाउट 8-9 लोग बैठे, चलने लगे हैं. चलने से पहले द पायलट गोज लाइक सॉरी वी कैन नॉट गो, वेदर कंडीशंस बैड, कैंसल्ड. अच्छा Cancelled, waited at the airport for a few hours, nothing happened. अच्छा Then the decision was कि okay, next day wake up at 2 in the morning and we will drive 4 hours to an airport close by to Lukla, अच्छा. and then वहाँ से फिर निकलेंगे. अच्छा So that drive was also very interesting because I think उसके बीच में कहीं लैंडस्लाइड हुई थी. तो मैं बीच में तो मैं तो सो जाता हूँ किसी भी कंडीशन में. मैं उठा, मैं देखता हूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, खाई एकदम. अच्छा But luckily the driver and the guide they seemed very confident. उन्होंने पहुँचा दिया सुबह 5:30 और फिर हम लोग फिर वहाँ से निकले. वहाँ भी फिर थोड़ी देर वेट करनी पड़ी और जैसे ही प्लेन्स लैंड हुए टू गेट अस टू लुकला, एवरीबडी वाज चीयरिंग एंड यू नो आई थिंक दिस आई वांट टू मेक वन मेंशन ऑफ लाइक द होल ट्रैकिंग माइंडसेट. उससे पहले वाले दिन भी व्हेन यू नो थिंग्स वर गेटिंग डिलेड और लाइक you know the next day when we weren't able to go, people still had a smile on their face. People are you know they have that work they mindset want of- yes You जो have- भी सिचुएशन है जो भी है they Positive. want पॉजिटिव ये हांगकांग में नहीं होता बिकॉज हांगकांग में यूज टू के फ्लाइट का है, बोर्डिंग पास ये वो तो टेंशन ही होती है जितनी देर तो फ्लाइट पे नहीं हो. आई गॉट दैट एनर्जी. तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया. Initially, वो एक्सपीरियंस मैंने खूब एंजॉय किया. अच्छा. तो बस फिर प्लेन में बैठे पहुंचे लुकला. सो लुकला इज 2500 meters above sea level. ठीक है. So to give context, Hong Kong we're at sea level. Yep. So reached there, so that's where I started my hike. With me was my guide, Dilli Ram. Okay. So we started in Lukla. I carried a day pack of around 4 to 5 kilos, and he carried my duffel bag and his own pack. So he had another 10 kilo on him. Okay. So बस हमने वहाँ से जर्नी शुरू की and just part by part फिर टैकल किया बेस कैंप को. तो वहाँ से कितनी देर लगी आपको? मेरे को टोटल 8 days लगे. 8 days. Yes, 8 days. Normally, like I said, it's normally about नहीं मुझे 7 days लगे बेस कैंप पहुंचने में. नॉर्मली 9 days लगते हैं. मैंने 2 दिन स्किप किए बीच में. अच्छा. And on the way back, normally people take 2 to 3 days. I took a helicopter ride back because just, I've never sat in one before, and I just wanted to experience that. Okay, because, that experience yeah, also, yeah. So yeah, that was fun. Lukla में शुरू किया. We hiked for about 3 to 4 hours. That hike was very similar to what you do in Hong Kong. अच्छा. Okay. वही terrain वैसे ही. terrain पे जाते हैं. Just the beauty of the place is obviously maybe tenfold. Yeah. Then the next day from we reached Phakting. Phakting से आगे नामचे बाज़ार. ये वाला जो ट्रैक है ये अबाउट 6 से 7 घंटे का होता है. ये लंबा होता है थोड़ा. अच्छा. इसमें अबाउट आई थिंक 1500 मीटर्स का इंक्लाइन आता है. एंड देन इसके बाद जब आप नामचे बाज़ार पहुँचते हो वहाँ पे जाके ना आपको फिर फील होने लगता है कि हाँ आप थोड़ा सा ज़्यादा कहीं से 10 कदम चले सांस चढ़ जाती है. कहीं और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना वहाँ पे बहुत. और वहाँ आप देखोगे जो लोकल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं इधर उधर. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं. एंड हैट्स ऑफ टू वन मोर थिंग, शर्पास जो वहाँ पे होते हैं, जो जितनी भी जगह हैं वहाँ पे जितना भी सप्लाई आता है काठमांडू से सारा हेलीकॉप्टर तक लुकला आता है. अच्छा. वहाँ से मोस्ट ऑफ इट इज एक्सपोर्टेड ऑन फुट बाय दिस शर्पास who are carrying at least 50 to anywhere between 50 to 70 kilos on their back. And they'll just pass you by and they will अच्छा. yeah. So obviously hats off they're to used those. to it. Yeah, they're used to it, and you see them traveling on that route, and you obviously have like yaks and other animals who are helping to export. तो बस उस दिन नामचे बाज़ार पहुँचे और अगले दिन मेरा था एक्लेमेटाइजेशन वाला डे. अच्छा. वो दिन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डे था मेरे लिए बिकॉज वी डिड अ शॉर्ट ट्रैक. So normally when you acclimatize, the rule is you trek high, you sleep low. अच्छा. Okay. So when you do that, we trekked to a place nearby about 4,000 meters.
and that day एकदम clear weather था. I got my first view of the Everest and Lhotse. Oh. And it was amazing feeling. I think वहाँ पे एक छोटा सा कैफे भी बना हुआ था जहाँ पे बैठ के हमने चाय पी, फ्रेंच फ्राइज खाए. That's so nice. that was also very nice. I actually ended up meeting a lot of people जिनके साथ मैं निकला था. इधर से हेलीकॉप्टर में? हाँ नहीं, प्लेन में जब मैं निकला था शुरू में, वो लोग भी मिले रास्ते में. So it was a very nice day, beautiful day. Took lots of pictures, took lots of videos. उसके बाद आए, then rested. I think thus far my experience, मुझे at no point कुछ like I think घबराहट या डर ऐसे कुछ लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इस point तक I was very happy. Like जैसे I would step out in the morning, दिल खुश हो जाता था देख के the views and everything. I would just be like, जैसे डैड बोलते हैं अरे वाह, like I would just go out and मैं सर जी सुन रहे हो, अरे वाह, एक्सपीरियंस वहाँ पे भी. तो you just see the views outside, like ऐसे दिल खुश हो जाता था कि like wow, this is so beautiful. But when next day when I left नामचे बाज़ार, वहाँ से ट्रैक थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है. अच्छा. Because from there you gain anywhere I think about like 600 to 800 meters every day of ascent. अच्छा. And but you keep going up in height. Okay. And उससे you feel it more in your lungs. So guide का सेम होता था, slowly. अच्छा. आराम से धीरे चलते रहो, then you don't feel it as much. And I think one thing I would say is that I would drink a lot of fluids. Okay. मैंने पूरी थ्रू आउट फुल ट्रिप में मे बी आखिरी दिन छोड़ के, बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड, आई वुड ड्रिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 liters ऑफ फ्लूइड एवरी डे. पर सप्लाई पूरी मिलती जाती सी कि सो क्या होता है कि खाने पीने का क्या सिस्टम है ट्रैक पे, तो जो पानी का सिस्टम है, यू कैन गेट टैप वाटर फ्रॉम देम, बट यू if you're going to do that, then it's better you take those chloride tablets that you can put in the water and it purifies it. Yeah. Or some people have this UV technology का कुछ होता है, you just वो होता है. But what I did was I got water bottles. Okay. I got water bottles at most places. Okay. And that was helpful. I also took some electrolyte pills. Okay. उससे भी काफ़ी help होती है. Like you need some essential salts and all, because apparently you lose all of this very quickly at high altitude. खाने पीने का जहाँ तक सिस्टम था, avoid non-veg. Okay. No non-veg throughout the trip unless you're coming down and you want to take a chance with it. No non-veg and no alcohol. Yes, वहाँ पे काफ़ी सारे बार्स मिलेंगे आपको रास्ते में, और जितने भी आप टी हाउस या लॉज में जहाँ भी आप रुकते हो, वहाँ पे उनके पास पड़ी होती है, बियर पड़ी होती है, they'll have whiskeys, they'll have wines, they'll have everything. But normally that stuff is for people who are coming down. Not recommended. That is a celebrating time only. Yes, definitely not, because you can tell yourself that okay, you're fine, nothing will happen, you've maybe done it multiple times, but when your body is in that specific state, high altitude, as per my guide, उन लोगों को भी हो जाता है. Okay. And then when you have that issue, you need to go back down to Kathmandu or somewhere where it's तो वो सीन था. तो खाने में normally I would have दाल भात. They would have those Nepalese instant noodles. अच्छा. वो और भी ऑप्शंस, वेज ऑप्शंस होते हैं, पिज़्ज़ा, टोस्ट, अंडे मैंने खाए थ्रू आउट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. तो अंडे सेफ, अंडे सेफ थे, तो वो दैट वाज फाइन. आ जाते हैं अंडे तो. लॉट्स ऑफ हनी जिंजर लेमन टी, लॉट्स ऑफ मसाला चाय, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी. सो या दैट आई थिंक खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट एंड डोंट कट बैक ऑन कार्ब्स. जितने कार्ब्स खा सकते हो उतने खाओ. मैं थ्रू आउट द डे खाता, कैलोरीज बहुत बर्न होती है ना, बहुत बर्न होती है, एंड इट ऑल्सो एक्चुअली हेल्प्स विद हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस. मुझे कब भी थोड़ा सा कुछ लगता था, आई वुड गेट अ बार ऑफ स्नीकर. अच्छा. या मम्मी ने पैक बना के दिया हुआ था वो ड्राई फ्रूट्स का. अच्छा. वो थोड़ा सा वो खा लिया. सो डोंट वरी अबाउट लाइक योर वेट गेन एंड ऑल ऑफ दैट. वरी अबाउट लाइक व्हाट योर बॉडी नीड्स एट दैट पॉइंट. सो विच इज फूड and which is carbs that are easy to digest, like your white bread and your white rice and stuff like this. So I had that throughout. So नामचे बाज़ार से जब आप निकलते हो, then you make your way to Tengboche. Tengboche में एक बहुत सुंदर monastery है,
जहाँ पे वहाँ पे आई थिंक जो मॉन्क्स हैं वो उधर ही रहते हैं. So that was also a very nice peaceful experience. You sit there, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, they're chanting I think Om Mani Brahme हो, they do that all day, they live there. किया meditate? नहीं meditate तो नहीं किया, बस थोड़ी देर बैठ के उनको देखा. तो बस वहाँ पे थोड़ी देर चिल किया. फिर यहाँ से then stay at Tengboche. Tengboche से फिर अगले दिन हम लोग गए Dingboche. Dingboche also higher up in altitude. Now when you come to this place Dingboche, यहाँ तक आते आते जो आपका terrain होता है ना वो एकदम change हो जाता है. अच्छा. Initially when you start आपको खूब सारी greenery मिलेगी, you'll find more like lush trees and all of that stuff. लेकिन स्नो वहाँ पे है थी कि नहीं पहले? नहीं थी. अच्छा, यहाँ तक स्नो नहीं थी? यहाँ तक बिल्कुल स्नो नहीं थी. आई थिंक वेदर पे भी डिपेंड करता है कि अगर स्नो पड़ती है उस टाइम पे तो यू विल फाइंड स्नो ओवर देयर. डेंगबोचे इवन इन फैक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ भी स्नो होती है, वहाँ भी पड़ती है स्नो. बट सो इफ़ यू आर गोइंग टू एवरेस्ट बेस कैंप देयर 2 स्पेसिफिक सीजन्स. एक है आपका ये ऑटम वाला, अक्टूबर एंड नवंबर वाले जो 2 मंथ्स होते हैं जो बिजिएस्ट होते हैं, वेयर यू विल गेट द क्लियरेस्ट ऑफ लाइक मोस्ट लाइकली क्लियर. पहाड़ों में कोई पता नहीं होता, बट ये वाला एक वेदर. और एक होता है जो स्प्रिंग या स्प्रिंग इनिशियल नो स्प्रिंग आई थिंक अराउंड आई वुड से अप्रैल एंड मई. बिकॉज जो समर वाला पीरियड होता है आई वुडंट एडवाइज गोइंग देन, बिकॉज उस टाइम पे बारिश होती है पूरा टाइम. थ्रू आउट आपको बारिश मिलेगी. यू आर नॉट लाइकली टू गेट एनी व्यूज. सो इस टाइम तक आई थिंक हम डिंगबोचे पहुँचे, वहाँ पे भी रिलैक्स किया. डिंगबोचे में आई थिंक जब फर्स्ट नाइट जब मैं वहाँ पे सोया, मुझे आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, बिकॉज आई वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड आई कुडंट ब्रीथ. आई कुडंट ब्रीथ एंड आई वाज लाइक अब ये क्या सिस्टम है. वैसे तो मेरे गाइड ने लाइक मुझे बोला हुआ था कोई भी प्रॉब्लम हुआ जो मेन लॉज का जो डाइनिंग एरिया होता है वहाँ आ जाना, समबडी विल टेक केयर ऑफ यू. तो मैंने क्या रियलाइज़ किया, यहाँ पहुँचना मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था. अच्छा. तो वो कोल्ड होने के कारण मेरा नोज स्टफी हो गया था. दैट्स व्हाई आई कुडंट ब्रीथ. ओके. मुंह से जब सांस ले रहा था, एट दिस पॉइंट वी वर एट आई थिंक अबाउट 4,500. व्हेन यू आर क्लोज टू दिस 4,500 to 5,000 meters, that is roughly 50% of the oxygen level जो आपको जहाँ पे जो सी लेवल पे आपको मिलता है. तो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन आप थोड़ी बहुत करवटें भी बदलते हो तो सांस चढ़ जाती है. सही बात है. तो आई रियलाइज दैट देन अगेन लाइक मम्मी जी जिंदाबाद, उन्होंने विक्स दी हुई थी टाइगर बाम. मैं नहीं लेके जाने वाला था बट उन्होंने डाल दी हुई थी. सो आई न्यू इट वाज देयर. वो थोड़ा बहुत उसका किया और फिर देन आई वाज एबल टू स्लीप इवेंचुअली. मदर्स रेसिपी जो होती है ना वो इसलिए नाम नहीं बना है. जब सब कुछ नहीं काम आता है ना तो वही चीज़ काम आती है. तो बस फिर वहाँ से निकले. नॉर्मली लोग डिंगबोचे में एक्लेमेटाइज करते हैं. अच्छा. दैट इज़ एक्लेमेटाइजेशन आई मिस्ड. तो उसके बाद देन आई वेंट टू टेंगबोचे विच इज़ द नेक्स्ट टाउन और द नेक्स्ट विलेज. वहाँ जाके बाय दैट पॉइंट मैं एग्जॉस्ट अभी हो गया था, बिकॉज आई हैड नो लाइक एक दिन का एक्लेमेटाइजेशन नहीं था. आई हैड बिन गोइंग नॉन स्टॉप. यहाँ पे आके नॉर्मली मैं थक गया था. नॉर्मली इधर से क्या होता है, इधर से आप अगली विलेज पे जाते हो विच इज़ गोरखशीप. और गोरखशीप के बाद आते हैं 2 रूट. या आप काला पत्थर जाते हो टू गेट अर्ली मॉर्निंग टू गेट द व्यूज़ ऑफ एवरेस्ट, या आप जाते हो एवरेस्ट बेस कैंप. और यू कैन डू बोथ एज वेल बट ऑन डिफरेंट डेज. व्हाट आई डिड द नेक्स्ट डे वाज, बिकॉज मुझे हेलीकॉप्टर गोरखशीप से मिलने वाला था. अच्छा. ओके. बट कोई नेपालीज गवर्नमेंट के वो लॉ चेंज की वजह से इट वुडंट फ्लाई फ्रॉम देयर, इट वुड फ्लाई फ्रॉम उससे पहले वाला जो डेस्टिनेशन था लोबुचे. मुझे क्या करना था, मुझे लोबुचे से एक दिन में लोबुचे से गोरखशीप, गोरखशीप से एवरेस्ट बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप से गोरखशीप और फिर लोबुचे. So that was I think roughly around 10 hours of trek in above 5,000 meters without any acclimatization. I was थोड़ा सा मुझे ना उसका थोड़ा नर्वसनेस थी, बट आई वाज लाइक देखी जाएगी जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं होती. मैंने पानी खाना सब रखा हुआ है. ना फॉर सम रीज़न उस दिन हम लोग जल्दी निकले एंड पता नहीं क्यों हमने डिसाइड किया कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, कि रास्ते में खा लेंगे. अच्छा. वो रास्ते में करते करते जब एक पॉइंट तक पहुँचे, वहाँ पे इतने एग्जॉस्ट हो गए. जब आप इतने एग्जॉस्ट होते तो यू कांट डाइजेस्ट टू मच फूड. तो पता नहीं कहीं बीच में रुक के थोड़ा बहुत खाना खाया. तो हम गोरखशीप पहुँचे.
गोरखशिप पहुँचते पहुँचते काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद मेरे जो गाइड ने मुझे बताया कि मैं झूलते झूलते एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचा हूँ, और झूलते झूलते वो अपनी नेपलीज में भैया जैसे कोई वो मतलब वो जो जाता है ना आपकी वैसी हालत थी। बट लकीली टचवुड थैंक गॉड और व्हाटएवर मुझे कोई हाई अल्टीट्यूड के सिम्टम नहीं हुए। इट वाज जस्ट प्योर एग्जॉशन। ओके ओके, वहाँ पे जस्ट टायर्डनेस। और वहाँ से जो गोरखशिप से जो एवरेस्ट बेस कैंप का रास्ता है वो क्या है, वो है पत्थरों पे है। कितनी दूर है वो है अबाउट 3 kilometers. 3 kilometers. So now 3 kilometers, one somebody in Hong Kong will think 3 kilometers. What is 3 kilometers? Is nothing. लेकिन वो ऊपर को है कि सीधी? नहीं, ऊपर को है. So you gain about और वो वाला जो पोर्शन है ना वो आप गाइड के बिना नहीं कर सकते. अच्छा, because you don't know the way. नहीं, वो पत्थरों के बीच में से है. अच्छा, okay. It's like they knows which is the closest way, otherwise you will get lost. Yeah, you will get lost. Okay. बट वो भी पार्ट में ना मुझे लास्ट डे इस पॉइंट पे मुझे काफ़ी स्नो मिली ऊपर से। अच्छा, वहाँ पे स्नो थी? वहाँ पे स्नो थी क्योंकि वहाँ बारिश पड़ गई, जो भी बारिश पड़ गई तो वेदर वाज एज सच। स्नो दिखी या पड़ी भी? स्नो पड़ी। अच्छा, ओके। स्नो पड़ी, अच्छे से स्नो पड़ी। दैट होल डे इट वाज स्नोइंग। ओह, ओके। सो तो मजे लिए स्नो के मजे लिए। एंड व्हाइल यू आर गोइंग अप देयर सो एग्जॉस्टेड, बीच बीच में ना आवाज़ आती है लाइक थोड़ा सा वो ग्लेशियर्स में से बर्फ़ नीचे गिरती है। अच्छा। उसकी आवाज़ आती है थोड़ी बहुत। तो वो सारा जो वाइब था इज़ ब्यूटीफुल। तो उसी से आधी पौनी एग्जॉशन उधर ही ख़त्म हो जाती है। मेरे को तो लगता है आपकी वीडियो सुन के ना जो देख रहे हैं काफियों के मन बदल जाएंगे कि जाना है हमें भी। नहीं, बट इट इज़ यू प्लान योर ट्रिप इन अ वे जहाँ पे आप अगेन यू डू ऑल योर टू डूज, लिसन टू योर बॉडी। कहीं भी आपको अपने आप को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करो। एक दिन ज़्यादा लग जाएगा क्या होगा? एग्जैक्टली। आप वहाँ ट्रैकिंग करने जा रहे हो, अगर आप सुबह नॉर्मली हम लोग 7:30 तक निकल जाते थे। अच्छा। तो मैक्स टू मैक्स आपको 5 या 6 घंटे लगेंगे, या 7 या 8 भी घंटे लग जाते हैं। दैट्स द होल ऑफ योर डे। आप वही करने गए हो वहाँ पे। अगर आप स्लोली भी हाइक करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैव सीन पीपल इन देयर 60s. I have seen people who are 18, 17, 18, even 15 years old. They also did that. They did it at their own pace. और आराम से कर रहे थे. I saw people who had maybe knee problems and everything, holding 2 sticks, and धीरे करके चल रहे हैं. But they wanted to do it. They did it. हमारी उम्र वाले कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सफ़ेद दाढ़ी वाले मिले उधर कि नहीं? मैं खुद सफ़ेद दाढ़ी वाला हूँ। अब बाल तो भाई तेरे सफ़ेद है बिल्कुल। तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा। आई थिंक मेक श्योर दैट यू डू योर 2 to 3 days ऑफ एक्लामेटाइजेशन। अगर आपको ज़्यादा है तो आप 3 दिन एक्लामेटाइजेशन कर लो, और आप अपना आराम से खाओ पियो, गो विद अ गुड माइंडसेट। मेरे गाइड ने एक ही चीज़ बोली थी कि कोई आपका ऑक्सीजन लेवल, कोई वो डायमॉक्स एक पिल देते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, जिससे आपके लंग्स थोड़े खुल जाते हैं। यू हैव कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को सिर्फ बता देना आपको हेडेक हो रहा है या आपके हाथ ठंडे पड़ रहे हैं कि नहीं। ओके। अगर उनमें से देन ही इज़ लाइक उनमें से कोई चीज़ नहीं हो रही तो फॉरगेट अबाउट इट, एंजॉय योरसेल्फ। ही इज़ लाइक ज़्यादातर आपके माइंडसेट है। वो तो हांगकांग में भी पहाड़ों पे हमने देखा ही है, जस्ट माइंडसेट। एग्जैक्टली। तो अगर आपका एटीट्यूड राइट है, आपका माइंडसेट राइट है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट कि आपके दिमाग में ही होता है, लाइक इट्स मोस्टली ओवर देयर। सो वही माइंडसेट लेके हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचे, मैं और मेरा गाइड दिलीराम। तो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ जाके मैंने आयशा की टी शर्ट ली हुई थी। अरे क्या बात वो आगे सबसे पहले वो पहनी, उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई, वो उतारी, फ़ोटोज़ खींची। आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, आई डेंट थिंक अबाउट टेकिंग मोर वीडियोज़ एंड ये वो, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी निकले थे। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू गेट देयर, सो वी हैड द होल प्लेस टू आवरसेल्व्स। ओके ओके। तो वहाँ पे थोड़ी देर कितनी देर रुके वहाँ पे टॉप पे? About 20 minutes. अच्छा। 15-20 minutes. But like snow everywhere only. Oh yeah, it was snowing. I think snowing था and it was cloudy that day. Throughout the trek किसी भी दिन bad weather नहीं मिला except my last day. अच्छा। Which last day क्या हुआ? Last day snow पड़ी और एकदम cloudy था। अच्छा। But again for me like because mindset वैसा होता है, वो भी बहुत ही प्यारा experience था। मैंने कहा मैंने एवरेस्ट देख लिया, वो जितने मेन की माउंटेन्स थे वो देख लिए, एवरेस्ट की स्नो भी देख ली, सब एकदम। सो इट वाज वेरी नाइस। हम लोग वहाँ पे 15-20 मिनट रुके, थोड़ा चिल किया वहाँ पे, फ़ोटोज़ खींची और ये सब। 1-2 और लोग आ रहे थे, उनसे बातचीत की, एंड देन वी ट्राई टू मेक आवर वे बैक। एंड वो डे सबसे टफ होता है। आई कैन
100% से दैट बिकॉज जितने भी लोग रास्ते में मिले, एवरीबडी स्पेशली इंडियंस आस्क्ड और कितनी दूर है, और कितनी दूर है, कितनी देर में पहुंचेंगे। स्पेशली दोस्त, तो बता दो कितनी दूर है। जो गाइड था उसका आई थिंक जो टाइमिंग या वो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा, ही वुड से कि हाँ 10 minutes walk slow. I was like not 10 minutes walk slow, 40-50 minutes लगेंगे आराम। अच्छा, तो अभी आप ये बताओ कि जो आपका थ्रू आउट होल आपका ये जर्नी था जी, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते। हाँ जी। सो व्हाट वाज योर मेमोरेबल मोमेंट जो आप नहीं भूलेंगे ज़िंदगी भर इसमें? वाओ, आई थिंक देयर वर प्लेंटी, लाइक आई मीन देयर वर प्लेंटी। आई थिंक जो मैंने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट देखा जब, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। बिकॉज I don't know if I'll be able to do it in my lifetime, but I aspire to go to at least one 8,000 peak, which is either say Everest or Lhotse, ऐसे कोई जो भी 8,000 से ऊपर है। मेरा मन है कि अगर एक बार लाइफ में चांस कभी मिला या कुछ हुआ तो might do that। तो जब मैंने एवरेस्ट देखा and you know I'd been researching about it, मूवीज देख ली, ये वो कितना कुछ कर लिया। You there and you experience it in, and क्या होता है that these mountains are so huge, like you're just in awe of them. So for me that was my most one of सबसे जो memorable experience जैसे कह सकते हैं कि जब जो फर्स्ट व्यू था, फर्स्ट व्यू था एंड आई वाज लकी इनफ कि मैंने वहाँ पे बैठ के चाय पी, वो देखते देखते फ्रेंच फ्राइज खाए और वहाँ पे उसको खूब अच्छे से उसको अपनी मेमोरी में उतार लिया। क्या बात है, क्या तो वो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस थे और भी काफ़ी फ़नी एक्सपीरियंस थे। सो आई थिंक एक फ़नी एक्सपीरियंस था कि क्या होता है कि जो माउंटेन्स पे होते हैं जो शेरपाज होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो ऊपर नीचे जाते जाते ड्रिंक और शेरपा मीन्स ये जो लोग हैं कि वो आप बात करें उनकी जो एनिमल्स? नहीं, शेरपा द पीपल। शेरपा इज एक्चुअली ये जो कम्युनिटी है जो खुम्बू वैली है एक्चुअली, जहाँ पे ये एवरेस्ट है, जो वहाँ लोग रहते हैं उनको शेरपा बोलते हैं। जैसे हम लोग जैसे जो मेरा गाइड था, ही वाजंट अ शेरपा, ही वाज अ गोरखा। अच्छा, ओके, वो तो नेपाली। यस, वो नेपाली गोरखा, देयर फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन। ओके, तो दीज पीपल, देयर शेरपास, देयर एक्चुअली they're not called, they're from that region। जैसे यू नो इंडिया में अपने पंजाबी हो गए, हरियाणवी, अलग अलग रीजन में हिमाचली हो गए, तो वो the Sherpas, they're like native to those that region। तो क्या हुआ कि एक आई थिंक हम फाकडिंग से नामचे मज़ार निकल रहे थे। तो नॉर्मली क्या होता था कि सुबह उठ के एवरीबडी वुड पैक देयर डफल बैग्स एंड कीप देम आउटसाइड देयर रूम। तो मेरे केस में तो मेरे साथ जो दिल्ली राम जी थे, उन्होंने वो बैग लेके जाना था। बट नॉर्मली लोग बिग ग्रुप्स में आते हैं तो उनके टूर गाइड के साथ पोर्टर्स होते हैं अलग, जो वो कैरी करके आपके अलग सामान पहुँचा देते हैं। तो हम लोग ऐसी बात सब लोग कह रहे हैं कि यू नो लाइक दीज गाइज आर सो टफ, ये वो, विच ऑफ कोर्स दे आर, ये वो काफ़ी मतलब उनकी तारीफ़ हुई रास्ते में। तो हम लोग नामचे बाज़ार पहुँचे, तो जो साथ में ग्रुप था वो एक बंदा बोलता है कि मेरा सामान नहीं आया। अच्छा, तो वो कहते क्या हुआ, तो लोगों ने फ़ोन किया, कुछ किया, आई थिंक वहाँ पे काफ़ी वर्ड टू माउथ होता है। तो वो कहते वो ना बेचारे ने ना रात को ना ज़्यादा पी ली थी। तो वो ना बीच में ना कहीं अपना सामान रख के सो रहा है। तो वो फ्यू आवर्स में थोड़ा पीछे हो गया, वो थोड़ा पीछे है, तो वो फ्यू आवर्स में हो जाएगा। हाँ, तो वो वहाँ पे कहीं पे वो बैठा हुआ है, तो आई थिंक वो कोई गया होगा उसको, तो नीचे जाने वाले को बोला भाई उसको उठा के भेज देना। So that was a good laughing moment amongst people जो like कितना praise ये वो। So ऐसे छोटे छोटे ऐसे थोड़े बहुत incidences थे। I also met a lot of people जिनको मैं शुरू में मिला, बीच में कहीं पे मिला। Lots of people from India, अपने बॉम्बे, गुजरात और इस एरिया से काफ़ी लोग वहाँ पे। हाँ, पंजाबी भी अपने काफ़ी होना ग्रुप टूर लेके जाते हैं। Because I know somebody मैनू तो कोई नहीं मिला, like I didn't come across कोई मेरे को पंजाबी कोई अंबरसरिया मुंडा फिर गया नहीं। I think at least the only Punjabi I came across was myself। ठीक है। वो थे काफ़ी इजरायली लोग जाते हैं। अच्छा, इजरायली? हाँ, इजरायली लोग बहुत जाते हैं। आई थिंक वो अपनी वो ट्रेनिंग अपनी करने के बाद वो लोग जाते हैं। अपने अमेरिकन्स बहुत हैं, खूब सारे अमेरिकन्स थे। यूरोपियन इतने नहीं मुझे दिखे, बट अमेरिकन्स बहुत थे।
बस बढ़िया था। और कहीं कहीं गया, एक जगह एक इंडियन कपल मिले, उन्होंने मठड़ी खिलाई, उनके पास अच्छा, थी, वो okay. लेके आए हुए थे। Okay. कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। नहीं गुड। तो ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ what should he do? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% आई विल से लाइक मेरे तो ज़्यादा, इफ़ यू वांट फुल इंफॉर्मेशन A to Z, कॉन्टैक्ट माई मॉम। मेरी मम्मी ने पूरा एवरेस्ट बेस कैंप, इवन आई डिडंट नो थिंग्स, लाइक देयर वर थिंग्स आई डिडंट नो। मैं उधर गया, मैंने कहा आई थिंक कल हम निकलेंगे, पता नहीं केड़ा एयरपोर्ट नाम भूल गया। शी इज़ लाइक दिस वन। अच्छा, ओके। She knew each and everything. Okay. So obviously feel free to contact me. You know, I can give you the whole contact number you can Yes. see below. I can give you the full in and outs. I did the trek alone, but I would suggest that, you know, like depend, मेरी personality वैसे, मेरे को पसंद है वैसे, but if you enjoy hiking as part of your group, or you know you do that as family or as a couple, please do it. It's a once in a lifetime experience. There are plenty of good companies that will organize everything for you. The best thing about this tour is that when you book the tour, accommodation, your खाना पीना, जो मेन चीज़ें होती हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है। एंड एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, लग्जरीज लाइक वाईफाई और हॉट शावर, laundry, these things will cost you, and the higher up you go, they will cost you more. So a cup of tea just before Everest Base Camp will cost you up to 1,000 Nepalese rupees over there. Okay. Whereas you know, when you start it may be a few hundred But rupees. your own Wi-Fi, I Yeah. call you, I made a video call So to you. now you that's were the thing. उस टाइम पे क्या था कि मेरा जो गाइड था दिल्ली राम, आई डिडंट हैव टू टेक वाईफाई थैंक्स टू दिल्ली राम। ही वाज, क्या कहते हैं अपना वर्ड, जुगाड़ू। जुगाड़ू पर्सन। ही इज़ लाइक, ही अंडरस्टूड पहले दिन में, क्योंकि आपको जो फर्स्ट या सेकंड हाइट तक आपको डेटा रोमिंग थोड़ी बहुत मिलती रहती है। मेरे को कोई इंटरनेट नहीं सर्व करना होता था, मेरे को सिर्फ एक अपने घर में एक पर्सन है, उसको थम्स अप भेजना होता था। मम्मी को। हाँ बस, तो उनको थम्स अप भेजना होता था। ही अंडरस्टूड वेरी क्विकली। तो क्या होता है ना, ये जो गाइड्स होते हैं ना, इनके बीच में भी ये वो वहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट चलता है। तो दे हैड दोज वो स्क्रैच कार्ड जिसमें आपको वो मिल जाता है। तो वो क्या होता था, जब भी हम कहीं जाते थे तो वो आके मेरे को वो कार्ड दे देता था कि कर लो। एंड लकीली व्हेन आई गॉटन दैट कार्ड, जब मैंने बेस कैंप ख़त्म किया, मैं पहुंचा, आई सेंड द पिक्चर्स, you video called me. As it happened to be at that moment, मैं रूम में आया। I was also just thinking कि यार पता नहीं कहाँ पे होगा कि अभी, because you sent the picture just earlier. Yeah. So I was thinking, okay, maybe he's now online or something. So I called you, but it was very good, huh? It was amazing. मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास थोड़े और दिन होते हैं, then and if you enjoy that kind of stuff, you can also do a peak. Like a 6,200 peak. There are plenty of peaks. I think एक है मीरा peak, एक है peak शायद peak 65 or something like that it's called. There are few of these peaks that you can, that will only take you additional 2 to 3 extra days depending on weather. You can go and you can summit those peaks. And that again will be an additional very good experience. But roughly 12 से 13 दिन लेके जाओ, और at least आगे 2 दिन और पीछे 2 दिन बफर लेके जाओ, बिकॉज फ्लाइट डिलेज होती हैं। आपको वेदर के ऊपर रहना, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं वहाँ से जब लास्ट डे पे निकला तो मैं लोबुचे से लुकला, आई केम इन अ 15-20 मिनट्स हेलीकॉप्टर राइड। मेरा वहाँ से प्लेन था, बट आई ऑप्टेड इन फॉर अनदर हेलीकॉप्टर राइड टू काठमांडू। आई वाज लाइक, यू नो, लाइक अभी वेदर का अनसर्टन है, मैं एक दिन अगर मेरा डिले हुआ, एंड विच वाज लकी बिकॉज टाइफून आ गया था हांगकांग में। आई जस्ट लैंडेड राइट बिफोर, सो इट वाज अ गुड चेन ऑफ इवेंट्स, गुड डिसीजन दैट आई केम। माई गाइड had to stay there for 3 days. 3 दिन के बाद भी नहीं हुआ वेदर ठीक। He then had to trek for 3 days downhill because the nearest road is a trek 3 days from Lukla. वहाँ से फिर उसको by road 4 to 5 hours to काठमांडू। तो एक गल होर दसो बई, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ हाँ जी, ट्रैक, yes,
ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾय ਸਮਬਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਏ ਹੋ? मैं अपने आप गया, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। sponsored in ਸਪਾਂਸਰ the ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ? I don't think so. It's not. I wouldn't say it's that expensive. ਅੱਛਾ। I think if you मैंने तो क्या किया था, मैंने प्राइवेट किया, मैंने हेलीकॉप्टर So you लिया, did everything, I yeah, everything private. possible to increase my expense. But if you want, I think anywhere between I would say 1,500, it will cost you the whole thing, USD. You mean 1,500 US Yes, per person. only? Yes. 1,500 to anywhere to 2,000 depending on आप कैसी accommodation. You're talking from Nepal? No. From Lukla to Lukla? base camp to back to Lukla. Okay, The whole Lukla. trek I'm talking Okay, about. the trek thing. Yeah, okay. trek. और उसमें That's okay. That's not yeah. expensive. Yeah, that's उसमें तो actually. खाली दिल जवान चाहिए, बस। टांगों में जान चाहिए. Exactly. That's it. And I know like India में और भी tour groups, like if हाँ, you इसलिए have तो so family many, or friends, I think you can get even better rates Okay. to do this thing. But just you have to be careful कि like वहाँ पे आपको अपना थोड़ा timing का ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, you know, these small things. And equipment, मैं सारी equipment यहाँ से buy करके लेके गया था, काफ़ी सारे, like you need to get shoes जहाँ पे जिसमें ankle support है, that is absolutely necessary. You need something to carry, you know, your water bottles and your कपड़े. weather बहुत change होता है. जब मैंने शुरू किया था, I was in shorts and t-shirt. जब मैं last day पे था, I had like at least 4 layers. Yeah, weather. Yes, so weather will be, you will need all of that. You'll need trekking poles and so many small things that you'll need over there. Do get in touch with me. I can give you certain tips जिससे I think not just खर्चे बचते हैं but comfort भी रहता है. I think I ended up investing in good pair of socks and good pair of shoes जिससे मुझे throughout the trek. Shoes are the most important. Yes, and socks as well. 100 Yeah, like you socks get also. the क्या कहते हैं, merino wool की socks होती हैं, which soak in. If you can get undergarments and you know socks from that specific brand, it'll just, because you know like shower लेने का वहाँ पे थोड़ा, you will not be showering a lot of days unless you do decide to, but after a certain point if you go in certain weather आपको पानी भी जमा हुआ मिलेगा वहाँ पे तो. So all together Yes. costed you 50K more or less? Less. HKD? Less. Less. Okay. Everything included, my tickets to Kathmandu, my stay in Kathmandu, my all of this included, it cost me less than 50K. And I will say, like again, another shout out to Above the Himalaya. उन्होंने मेरा होटल किया काठमांडू में, मेरा गाइड, जब मेरी फ्लाइट डिले हो गई, I didn't pay any extra money to go to this other area to then अच्छा, take अच्छा, it no. was all included. included. So these are small things that you'd want to clarify with your company to make sure what's included, what's not included. That is maybe something you can negotiate on. Chalo ji, thank you so much. Like feels like after listening to him that we were also there walking with him, like experiencing the same thing. ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਡੋਕਲਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ. ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਟੁਡੇ ਗੈਸਟ ਐਟ ਹੋਮ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आई थिंक सबके लिए, या जो हाइकिंग जाता है या नहीं जाता है, मेंटेन एन एक्टिव लाइफस्टाइल. It's very important just for your physical well-being. It's important for your mental health well-being. You don't enjoy garmi dhup, you know, going on a mountain, go for a swim, maybe go to the gym. A lot of people have said you know walking long, half an hour a day is also very good for you. So you do what makes you happy, but an active lifestyle will naturally, क्या कहते हैं, like scientifically वो कौन से वो hormones generate करता है जिससे आपको खुशी मिलती है, ये वो.
So do that regardless. Enjoy yourself, and it's nice actually being out in the nature. Hong Kong में, you know, like it's a concrete jungle. You know, you are always surrounded by buildings. मुझे अभी भी मैं उठता हूँ सुबह तो मुझे होता है कि मैं उठूँ सुबह, मैं जब विंडो खोलता था तो मेरे को पहाड़ दिखते तो मेरे को बहुत याद आती है। और ये वो होता है कि एक बार चस्का लग जाए। अभी मेरा मन, मैंने 10 चीज़ों की लिस्ट बना ली हुई है अपने दिमाग में, मम्मी को नहीं बताया हुआ कि मम्मी का था कि प्रावा प्लीज ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ आ गए प्लीज जो पंगे ना ले। So it was yeah, do something active, do something that you enjoy, anything जो भी हो, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है थोड़ा बहुत आप करोगे, it will I think have an impact on your overall well-being. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।